Hello children, good morning. Today I am going to teach for the students of class 4th and the name of the lesson is matter and lesson 4. Children, today we will discuss about matter, states of matter, change of states, separating substance from water. Matter, what is the matter? Which has mass, occupy space are known as the matter. It means that substance which has mass and occupies space known as the matter. It means such as book, table, pen are known as the matter because they have mass and occupy the space. They have mass and also occupy the space known as the matter. Now we will discuss about the states of matter, solid, liquid and gas. It means there are 5 states of matter, but according to your stages we will discuss about only 3 stages of matter. Solid, liquid and gas. Solid matter which has fixed mass and fixed volume known as the solid. Liquid which has fixed volume and indefinite shape called liquid, and they have an indefinite shape and indefinite volume. Children, solid, that substance which has fixed shape and fixed volume, such as your pen, pencil, book, table, bricks, and so this type of substance, this type of matter known as the solid because they have fixed shape. They are not compressible because their particles are very closely to each other. It means the particle of solids are very closely to each other. So this type of matter are called solid matter and which has fixed volume and fixed mass. Okay, liquid, the particles of liquid in differ than solid. It means in solid the particles of solids very closely to each other like this, and the particle of liquid differ than solid, and the particle of gas very intermolecular spaces, large intermolecular spaces between them. So this type of matter known as the gas. Children, solid, it means ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस. उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को हम सॉलिड कहेंगे जिसमें फिक्स्ड हो, यानी कि जिसका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो और शेप भी, आकार भी डिफिनिट हो. इस तरह की ऑब्जेक्ट को हम किस ग्रुप में रखेंगे? सॉलिड ग्रुप में रखेंगे, जिसको दबाया न जा सके क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी सॉलिड के जो जिस सब्सटेंस से वो मिल के बना है, जो उसमें मास है, उनका जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली होते हैं एक दूसरे से, लाइक दिस. इसलिए वो बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं. उसको डिफर करना बहुत ही मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है सॉलिड को. लिक्विड, they are compressible, much compressible than solid because there the two particles of liquid between the intermolecular space, it means कुछ गैपिंग होती है इसमें लिक्विड में, एंड गैस में तो बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, इसलिए वो बहुत ही डिफ्यूजन करता है वन प्लेस टू अदर प्लेसेस. और इनका जो शेप और साइज होते हैं दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं. जिस बर्तन में डालेंगे उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम को ये फिक्स कर लेते हैं. कौन? गैस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर.
स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू चेंज, फिर गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो इस तरह की जो चेंजिंग है वो कैसे होती हैं? जब हम मैटर को हीट प्रोवाइड कराते हैं, जब उसको हीट देते हैं, तो ही ये मैटर वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, when we heat solid it convert into liquid, and when we heat liquid it convert into gas. So this type of condition known as the changing of states when we heated matter, it means solid heated then convert into liquid, and liquid heated convert into gas, and when cooling down on gas called liquid, and cooling down of liquid known as the solid. And that process which take place during the changing of states is known as the melting, boiling, condensation and freezing. यानी कि ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ स्टेट्स, जब हम किसी भी स्टेट्स को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, लाइक मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस एंड फ्रीजिंग प्रोसेस. Melting process, that process in which solid change into liquid. Solid change into liquid, this process is called melting process. And example, ice change into water, because ice in the form of solid, and when it's change into water, then we say this is called melting process. Now when liquid change into gas through the heated, then this process is called boiling. Boiling, this process is called boiling, and this is when liquid heated, liquid change into gas, this process is called boiling. And when cooling down gas and change into liquid, this process is called condensation. And when cooling down of liquid into solid is known as the freezing. Okay, now we will discuss about separating substance from water. यानी कि हम मैटर पढ़ चुके, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ पढ़ चुके, तो अब हमें सेपरेटिंग सबस्टांस फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर से जो सेपरेटिंग कंडीशन है, किसी भी सबस्टांस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसको सेपरेट करने की जो मेथड है उसको इस ग्रुप में रखा गया है. इसको इस मेथड से हम किस किस मेथड को सेपरेट करते हैं. सो सॉल्यूशन इज मीन्स कॉल्ड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि द कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नोन एज द सॉल्यूशन. यानी वन सॉल्यूशन इज मेड बाय a solution is made by solute and solvent. When we combine two solute and solvent, then they forms solution. Solutions are classified into two forms, solute and solvent. Solute, it means that substance which is disappeared in the solution. It means which is found in the very less amount are called solute. And solvent, it means they are found in large amount such as water. It means solute dissolved. It means solute dissolve into the solvent. Okay. Now once again, solution, the combination of solute and solvent. The combination of solute and solvent known as the solution. Solute disappeared, that substance which are disappeared
यानी कि वैसे पदार्थ जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इट मीन्स उनका अमाउंट बहुत कम रहता है, यानी वो घुल जाते हैं। डिसअपीयर मतलब कहाँ चले जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो सुगर, साल्ट, दिस टाइप ऑफ this substance are dissolved by the solvent, यानी किस मैक्सिमम वी यूज वाटर इन द सॉल्वेंट। मैक्सिमम हम वाटर को ही सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। सॉल्यूट कौन होता है, जो घुलने वाला होता है, यानी जो घुलाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें घुलाया जाता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, यानी कि सॉल्यूट दैट सब्सटेंस विच आर डिसअपीयर्ड, जो गायब हो जाते हों, डिसअपीयर्ड हो जाते हों सॉल्यूशन में इन सम टाइम, कुछ समय में, तो इसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट जिसमें गायब हो जाते हों, जो डिसॉल्व कर देता हो, हु डिसॉल्व्ड टू द सॉल्यूट नोन एज द सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड solute, sugar, salt. Okay, now separating substance from water, यानी कि सॉल्यूशन हुआ तो दो सब्सटेंस से मिक्स हो गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? देन द मेथड, some solutions are classified into soluble solution and some solutions are classified into insoluble solution. It means कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे सोल्यूबल सॉल्यूशन कहते हैं। और कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वाटर में दिखाई देते हैं, घुलते नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूबल सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? दैट सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व्ड into the water, into the solvent, are known as the solute, and that substance which are not soluble, which are not dissolved into the solvent water, they are called insoluble solution. Soluble, it means, so that substance which are soluble, they are separate from the solvent by the process of हीटिंग एंड इवोपोरेशन। इट मीन्स जो सब्सटेंस सॉल्यूबल में, जो यानी कि वैसे सॉल्यूशन जो सॉल्यूबल हों, जो घुल गया है, सॉल्यूबल हैं, उस सॉल्यूबल को यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने की जो प्रोसेस है, उसको किस प्रोसेस से हम अलग करेंगे? इवोपोरेशन प्रोसेस से, यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस से। ओके, केवल हीटिंग करने पर ही, यानी कि दैट सब्सटेंस विच आर सॉल्यूबल, दैट सॉल्यूशन विच आर सॉल्यूबल, जो घुल चुके हैं पूरी तरह से, कंप्लीटली दे आर सॉल्यूब, डिसॉल्व, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर सेपरेट फ्रॉम हीटिंग, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय हीटिंग एंड इवोपोरेशन। एंड इनसॉल्यूबल, वैसे सब्सटेंस, वैसे सॉल्यूशन जो इनसॉल्यूबल हैं, जो डिसॉल्व नहीं है, उनको दो मेथड से, मैक्सिमम बहुत सारे प्रोसेस हैं लेकिन आपको सिर्फ दो ही पढ़ना है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस वैसे प्रोसेस जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू द फिल्टर पेपर। एक पेपर होता है, उस पेपर पे उस सॉल्यूशन को पोर्ड करके जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो उसी पे पोर्ड हो जाते हैं, और जो यूज़फुल है, जो लिक्विड है, वो नीचे जाके एक न्यू कंटेनर में उसको ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड्स नोन एज द फिल्ट्रेशन मेथड। इट मीन्स दैट मेथड विच आर taken through the filter paper known as the filtration, as sedimentation left undisturbed for some hours in a container in the settle in bottom. It means सेडिमेंटेशन प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं कुछ समय के लिए उसको विदाउट डिस्टर्ब, उस लिक्विड को, सॉल्यूशन को विदाउट डिस्टर्ब करके, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है कुछ समय के लिए। थोड़े समय के बाद जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो प्योर्ड वाटर होते हैं वो ऊपर फ्लोटेड होते हैं, उसको दूसरे कंटेनर में पोर्ड करके इस तरह से हम सेडिमेंटेशन मेथड को कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन,
Thus our chapter is going to be end. Thank you.